Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night, Cody Garbrandt versus Rob Font. वैसे bantamweight division, as I've said before, is one of the best divisions at the moment. उसमें अगर हम just rankings में देखें तो there is a ton of competitions both पहले के and अभी के champions का and challengers का. Aljamain Sterling currently champ है. Peter Yan arguably champ हो सकते थे. He almost beat Sterling. And with disqualification हारे थे. Corey Sandhagen meanwhile number 2 contender right now clearly is the next contender to fight for the title because Sterling से although हारे थे उसके बाद उन्होंने continuously 2 strong wins लिए थे against Marlon Moraes, one of the top fighters in the division, and then Frankie Edgar को जो quick KO किया था first round में. Then we have number 3 and number 4 जिनका fight होने वाला है कल, Rob Font versus Cody Garbrandt. जिनको कोडी गारब्रैंड के बारे में नहीं पता, एक बार जैसे पहले मैंने बोला है, आई बिलीव UFC 250 में इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट राफेल असनसाव. तब मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, एक बार जस्ट रिमाइंड कर देता हूँ. ही वॉज द फॉर्मर चैम्प. ही हैड डिफीटेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंटमवेट्स ऑफ ऑल टाइम, डोमिनिक क्रूज, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट पहले भी किया है इस पॉडकास्ट में. उनको उन्होंने हराया था टू विन द टाइटल. एंड अगर आप लोगों ने कोडी गारब्रैंड वर्सेस डोमिनिक क्रूज नहीं देखा है, I would highly recommend you कि ये मैच जाके देखो because historically this fight has a lot of importance, at least I can say like that. And Cruz being one of the greatest bantamweights, उनको जिस वे में कोडी गारब्रैंड ने हराया था, सबको लगा था कि this is one fighter कभी हारेगा नहीं. He'll probably be champ for a long time. He'll be one of those stars जो एक बार जब आ जाते हैं हाईलाइट पे तो he'll just remain there. And unfortunately उसके बाद he fought his former teammate TJ Dillashaw. And even वहाँ पे TJ Dillashaw को initially उन्होंने round 1 में stagger किया था and it looked like he would win, but eventually TJ Dillashaw knocked Cody Garbrandt out in round 2. and जब rematch हुआ उन दोनों का तो he knocked him out in round 1. and Cody Garbrandt का ऐसा कैटेगरी में आया कि he kind of gets reckless जब ये fight ज़्यादा heat up हो जाता है. एंड ये और ज़्यादा प्रूफ हुआ उसके बाद व्हेन ही फॉट पेड्रो मुनियोज, जहाँ पे ही वाज क्लियरली डूइंग रियली वेल, बट एक दो शॉट जब लगा तो ही गॉट हीटेड अप एंड सीधा ट्रेड करने लगे. एंड पेड्रो मुनियोज इज लाइक द फाइटर विद द टफेस्ट चिन इन 135 डिवीजन. एंड वही हुआ. Garbrandt was hitting a lot of strikes, but Pedro was also hitting him back, and eventually Garbrandt got knocked out again 3 times in a row, and that was a very डाउन पॉइंट ऑफ हिज करियर. चैंपियन से सीधा 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे गए थे. एंड उसके बाद दैट वाज UFC 250 जहाँ पे उन्होंने रिटर्न किया था अपना. ही फॉट राफेल असनसाव, अनदर टॉप फाइटर्स इन द डिवीजन. एंड we clearly saw कि there is a lot of difference. He obviously moved camps. He started training with Mark Henry, one of the greatest coaches in MMA, and we can say वो कहीं पे play out किया. फाइट में ही वॉज मोर डिफेंसिवली रेस्पॉन्सिबल. एंड टू एंड इट ऑल उन्होंने राउंड 2 में जस्ट एट द बजर, राउंड 2 के एंड के एग्जैक्ट टाइम पे असनसाव को नॉकआउट कर दिया. एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नॉकआउट्स आई कैन से. ऐसा वन ऑफ दोस थिंग्स विच मेक्स यू से कि दिस पर्सन इज एन एलिट स्ट्राइकर, यू नो, जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो किसी ने नहीं किया हो. एंड या दैट वॉज वेरी नाइस टू वॉच, वन ऑफ द क्लीनेस्ट नॉकआउट्स. And that's what told everyone कि Garbrandt is back. In fact, Sterling versus Corey Sandhagen इसी कार्ड में हुआ था. Clearly अभी एक चैम्प है, एक नंबर 2 कंटेंडर है. Still Garbrandt got the co-main event. उनके ऊपर मिला था. That's because he is still one of those fighters जिनको लोग बहुत appreciate करते हैं, बहुत respect करते हैं. And very good chance है कि Garbrandt आगे जाके चैम्प वापस बने. I don't know कितना ऐसा play out हो, because obviously we have Aldo who's very strong. अभी भी 5th rank पे हैं. He won against Marlon Vera recently. Then Pedro Munoz is still there. Dominic Cruz is still there. And TJ Dillashaw is making his return very soon. Actually Corey Sandhagen के साथ उनका fight होने वाला था recently, which got cancelled. And then I believe Marina Rodriguez versus Michelle Waterson fight हुआ उसी कार्ड में as a main event. And I think a lot of people who will look for the championship. Aljamain के लिए there is क्या कहते हैं,
no break. Like if he beats once, then he has many contenders lined up for him. And अगर यान कैसे भी आके जीत जाते हैं तो he'll also have a bunch of killers waiting to take the title from him. एंड इसी किलर लिस्ट में एक और नाम हम बोल सकते हैं इज रॉब फॉन्ट। रॉब फॉन्ट को मैं अगर ऐसे डिस्क्राइब करूं, उनका रिकॉर्ड इतना खास मुझे लगा नहीं था। इनफैक्ट जब मार्लन मोराइस के साथ फाइट हुआ था, मैंने प्रेडिक्शन दिया था पॉडकास्ट में कि मार्लन मोराइस शुड विन द फाइट। हर वे में मार्लन मोराइस इज मोर एलीट, ऐसे मैंने बोला था। एंड देन ही सरप्राइज्ड अस ऑल। रॉब फॉन्ट ने राउंड 1 में ही मार्लन मोराइस को नॉकआउट कर दिया एंड दैट वाज अ वेरी ब्रूटल नॉकआउट। इनफैक्ट आई was genuinely surprised। मैंने उनका करियर इतना रिकॉर्ड में देखा नहीं था, बट व्हेन आई सॉ हिम थ्रो द वे ही थ्रू द स्ट्राइक्स, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सम हाई लेवल स्ट्राइकर। एंड दैट्स व्हाट इंट्रिग्स मी मोर अबाउट दिस फाइट। इन अ लॉट ऑफ वेज मुझे ये फाइट हॉलोवे वर्सेस केटर की याद दिलाता है। एक तो ऑब्वियसली रॉब फॉन्ट एंड कैल्विन केटर आर टीममेट्स, न्यू इंग्लैंड कार्टेल बुलाते हैं इनके टीम को। एंड लास्ट फाइट में ऑब्वियसली कैल्विन केटर वाज इन हिज कॉर्नर। एंड देर इज अ फीलिंग कि लाइक मार्लन मोराइस को जब हराया था, देर वॉज अ लॉट ऑफ सेंस ऐसा आ रहा था कि दिस टीम इज बर्टिंग अप। एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट मेड मी नर्वस फॉर द हॉलोवे वर्सेस केटर वाला फाइट। एंड हॉलोवे देन वेंट ऑन टू बीट अप कैल्विन केटर वेरी बैडली। रोज नमाजुnas वर्सेस वेली जैंग, वहाँ पे भी ऐसा लगा कि देर इज वन अपकमिंग कंटेंडर लाइक वेली जैंग एंड देन देर इज रोज एंड रोज बीट हर अप। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फाइट ऐसे जा सकता है। दैट्स बिकॉज कोडी गारब्रैंट इज लुकिंग वेरी फ्रेश, बट देन रॉब फॉन्ट हैज सरप्राइज मी बिफोर। मार्लन मोराइस, अगर मैं आपको ऐसे जनरल में बोलूँ, मार्लन मोराइस इज वन ऑफ द ओनली गाइज हु हैज नॉक्ड आउट एल्जेमिन स्टर्लिंग, द चैम्प राइट नाउ। उसके अलावा जो भी लॉसेस है एल्जेमिन के करियर में, बाकी दोनों स्प्लिट डिसीजंस थे एंड ही कुड हैव वन देम, ऐसा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। बट मार्लन मोराइस वाज दैट गाय हु नॉक्ड एल्जेमिन आउट। एंड हेनरी साउडो के साथ भी उन्होंने टाइटल फाइट किया था। ही वाज वन ऑफ द वेटरन्स एंड उनको ऐसे राउंड 1 में नॉकआउट करना इज समथिंग रियली अमेजिंग। देयर वाज नो डिबेट, ऐसा कोई स्टॉपेज में भी डिस्कशन नहीं था। ही क्लियरली नॉक्ड हिम आउट वेरी बैड। एंड अगर ऐसा जाए, आई थिंक देयर इज अ चांस कि रॉब फॉन्ट कैन नॉक आउट गारब्रैंट, बिकॉज 3 KOs से गुजर के आए हैं कोडी, जो ऑब्वियसली उनके चिन को बहुत अफेक्ट किया होगा। एंड वापस अगर नॉकआउट हुए, देन वी कैन से काइंड ऑफ दिस इज द लास्ट रिसर्जेंस। इसके बाद शायद वापस कभी ऊपर ना आ पाए कोडी गारब्रैंट। एंड दिस वुड बी रॉब फॉन्ट्स लेगेसी ही बिल्ट ओवर कोडी गारब्रैंट। दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर हिम अगर ऐसा क्या। स्टिल मेरा फीलिंग ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोडी विल पुट ऑन अ शो। एंड अगर कोडी गारब्रैंट इज एबल टू डू समथिंग at least remotely close to what Holloway did to Calvin Kattar, I'll be more than happy just to watch that glorious event happen like that. And if Rob Font knocks out Garbrandt, then props to him, kudos to him. मुझे just ऐसा feeling आ रहा है कि Garbrandt is fresh, he's looking to get a really good victory. And मेरा inherent pick जा रहा है कोडी गारब्रैंट की तरफ कि he'll get this done with a very beautiful knockout or a very brutal decision. देखते हैं, we have 5 rounds of this. I would definitely suggest कि कोई और फाइट देखो या ना देखो, ये फाइट तो डेफिनेटली देखना। लाइक लास्ट टाइम मैंने बोला था बारबोजा वर्सेस शेन बर्गोस जब हुआ था कि इट विल बी फाइट ऑफ द नाइट। आई एम प्रीटी श्योर ये वाला फाइट ऑफ द नाइट हो सकता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सम मोर फाइट्स व्हिच आई हैव टू टॉक अबाउट, स्पेशली द कोमेन इवेंट। कोमेन इवेंट का अगर मैं बोलूँ तो इट्स अ टाइटल एलिमिनेटर फॉर श्योर। अभी ऑलरेडी डेना व्हाइट ने भी बोला है, द चैम्प रोज नामाजुnas ने भी बोला है कि ये फाइट जो है दे विल बी वाचिंग कि नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर कौन होगा, इससे डिसाइड हो सकता है। कार्ला एस्पार्जा, अगर मैं उनके बारे में जस्ट ऐसे रफ आपको आइडिया दूं तो शी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट चैम्पियंस इन दिस डिविजन। आई बिलीव ये नंबर 1 चैम्पियन थी ये डिविजन की। रोज नामाजुnas को हरा के वो चैम्पियन बनी थी, बट दैट वाज ड्यूरिंग द टफ टाइम, द अल्टीमेट फाइटर जो उनका सीरीज होता है यूएफसी का। एंड फिर रोज नामाजुnas केम बैक, इवेंचुअली बीट योना यंजेचेक टू गेट द टाइटल एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। बट उससे पहले कार्ला एस्पार्जा फॉट योना यंजेचेक एंड लॉस्ट टू हर, एंड दैट्स हाउ शी लॉस्ट हर टाइटल। एंड देन रोज का स्ट्रीक चला, ये सब हुआ। बट पीछे लाइक कार्ला एस्पार्जा का तब तक इट वाज लाइक विन लूज, थोड़ा सा ऐसा
शेकी ग्राउंड्स पे थी. शी लॉस्ट टू रांडा मार्कोस फॉर डिसीजन. सिंथिया कैलिलोस से जीती थी, विच इज़ अ वेरी गुड फाइटर. क्लॉडिया गेडेला से डिसीजन में हारी थी. टाटियाना सुआरेस से हारना तो लाइक इट्स फाइन. शी इज़ वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स, वी कैन से खबीब ऑफ 115 डिवीजन. उसके बाद से शी हैज़ मैनेज टू गेट सम रियली नाइस विंस. आपको अगर मैं ऐसे नाम बोलूँ, नाउ इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. एलेक्सा ग्रासो, जो अभी बहुत अच्छे से बहुत रिकग्निशन मिल रहा है उनको. मिशेल वाटरसन क्लियरली लास्ट वाले फाइट में आपने देखा ही होगा. एंड मिशेल वाटरसन की ओपोनेंट जीत थी थोड़े वीक्स पहले, मरीना रॉड्रिगेज. इन सबको उन्होंने स्प्लिट डिसीजन, मेजॉरिटी डिसीजन ऐसे करके हराया है. एंड इट वाज नाइस टू सी लाइक कार्ला एस्पार्जा स्टिल क्लाइंबिंग द रैंकिंग्स. एंड अगर ऐसे बोलें, रोज इज क्लियरली लुकिंग फॉर दिस फाइटर टू विन. अगर एस्पार्जा जीती तो देयर इज अ चांस कि रोज नामिनास अपना रिवेंज ले सके, जो अल्टीमेट फाइटर में वो हारी थी. अभी वापस इनको हराने का चांस मिलेगा. एंड दैट्स वेरी इंट्रीगिंग. स्टोरी डेवलप करने के लिए वही काफ़ी है, आई कैन से. बट उनकी जो ओपोनेंट है यान ज़ायोनान, बहुत टफ कंटेंडर है. एंड उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही मैच लूज़ किया है, बहुत अर्ली उनके करियर में. यूएफसी में जब से आई हैं, आई डोंट थिंक शी हैज़ लॉस्ट एनी फाइट्स. उन्होंने सारे फाइट्स जीते हैं अब तक. एंड एंजेला हिल, कैरोलिना कोवाल्कोविच, क्लॉडिया कार्डेला, इनके लास्ट 3 ओपोनेंट्स हैं. तीनों बहुत अच्छे ओपोनेंट्स थे. एंड शी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स मोर विंस. अगर मैं उनका जस्ट स्ट्रीक अभी बोलूँ यूएफसी में, इट्स लाइक 5 wins, all 5 to 6 wins. 6 win streak है, आई बिलीव. एंड क्लियरली ये विनर जो होंगे उनको टाइटल मिल सकता है. मुझे पर्सनली कोई ऐसा बायस तो नहीं है. मुझे जस्ट लगता है कि कार्ला इज़ वेरी गुड ग्रैपलर, यान ज़ायोनान इज़ अ बेटर स्ट्राइकर. तो जो भी जिस पोजीशन पे ले जा सके फाइट को, वो जीत सकते हैं. एंड बोथ हैव चांसेस. यान ज़ायोनान का जस्ट जो स्ट्रीक और विनिंग रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल है कार्ला एस्पार्जा के लिए. बट देन मरीना रॉड्रिगेज ऑल्सो वाज अनडिफीटेड जब एस्पार्जा ने उनको हराया था. तो वी कांट से कि दैट विल मेक अ डिफरेंस एज सच. मरीना रॉड्रिगेज इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट स्ट्राइकर, बट उनको उन्होंने हराया था, सो इट्स पॉसिबल. कार्ला ने अगर इनको हराया तो शी कैन बी टफ इन टर्म्स ऑफ ग्रैपलिंग, बिकॉज रोज को उन्होंने लास्ट टाइम भी ग्रैपलिंग से ही हराया था. तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि फाइट कैसे जाएगा अगर वो जीतती तो. बट यान ज़ायोनान अगर जीती तो इट विल बी मोर ऑफ अ स्ट्राइकिंग वॉर बोल सकते हैं. अनदर चाइनीज फाइटर हु विल बी फाइटिंग रोज इन अ रो, लाइक 2 times इन अ रो डिफरेंट चाइनीज फाइटर्स के साथ फाइट कर रही है, ऐसा होगा. इट विल बी नाइस. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे जाएगा. आई थिंक इफ आई हैव टू पिक, आई थिंक कार्ला एस्पार्जा कैन डू इट, कैन गेट इट डन. उनका बस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली. बट यान ज़ायोनान क्लियरली इज कैचिंग अप. वो एग्जैक्ट वो पोजीशन पे है जहाँ पे यू कैन से कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं यहाँ से लेगेसी, अपना खुद लेगेसी क्रिएट करके चैम्प बन के बहुत सारी चीज़ें कर सकती है. एंड लेट्स सी. आई थिंक ये वाला फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगा. ये डिवीजन के लिए तो बहुत मैटर करेगा. एंड नेक्स्ट फाइट जो है फेलिशिया स्पेंसर वर्सेस नॉर्मा डुमोंट. आई कैन से 145 में देयर इज नॉट मच एक्टिविटी. 3-4 फाइटर्स ही हैं. एक वन ऑफ देम इज फेलिशिया स्पेंसर. आई कैन से नंबर 1 कंटेंडर कह सकते हैं फेलिशिया स्पेंसर को. ऑल दोनों ने नूनेस का फाइट कर लिया था ऑलरेडी UFC 250 में, एंड वहाँ पे हारी थी. बट शी स्टिल लाइक एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज नंबर 1 कंटेंडर. उन्होंने मीगन एंडरसन को हराया था, द ओनली अदर टाइटल कंटेंडर इन द डिवीजन. एंड मीगन एंडरसन ने नॉर्मा डुमोंट को हराया था, इनके ओपोनेंट, इन नॉर्मा डुमोंट्स डेब्यू. एंड फेलिशिया इज ऑल्सो लाइक कट साइबॉग, एक राउंड जीता था उनके साथ. लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन से इज टू हर क्रेडिट. मीनवाइल नॉर्मा डुमोंट इवेंचुअली जाके एशली वन स्मिथ करके एक और फाइटर है, उनसे जीती. तो इनका ये 3rd फाइट होगा UFC में. आई थिंक ऐसे जनरली अगर बोलो तो आई पिक फेलिशिया स्पेंसर. आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट ग्रैपलर. नॉर्मा डुमोंट का आई डोंट नो ग्रैपलिंग में कितना स्ट्रेंथ है, बट शी वॉज वेरी हंग्री जब उन्होंने वो आई थी. तो आई डोंट नो, शी कैन पुल ऑफ अ सरप्राइज. एंड वो जीती तो हु नोस 145 में एक और टाइटल डिफेंस करने को मिलेगा नुनेस को. बट इन जनरल आई थिंक फेलिशिया शुड गेट दिस डन. इसके अलावा जो एक और फाइट है, दिस फाइट आई कैन से आई हैव अ क्लियर फेवरेट. मैंने जैक हरमैनसन के बारे में बहुत बार बोला है कि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स इन मिडल वेट डिवीजन. एंड उनका अगर मैं प्योरली रिकॉर्ड को एनालाइज करूं, रिसेंटली थोड़ा सा शेकी रहा है. उन्होंने जैरेड कैनेनियर से हारने के बाद केल्विन गैस्टलम को क्विकली 1 राउंड में सबमिट करके एक अच्छा विन जीता था. उसके अलावा देन ही लॉस्ट अगेन टू मार्विन वेटोरी रिसेंटली.
जहाँ पे ही गॉट रॉक्ड इन राउंड 1, राउंड 2 में भी वो हारे थे। क्लियरली स्ट्राइकिंग वाइज थोड़ा पीछे रह गए वो, बट ही वॉज कम्पिटेटिव आई कैन से। मार्विन वेटोरी इज फाइटिंग फॉर टाइटल नेक्स्ट। एडिसन के साथ फाइट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जो आगे आएगा थोड़े दिनों में। उनके ओपोनेंट जो है एडमन शहबाजियन, वो प्रॉस्पेक्ट थे डिवीजन के, अभी भी है एक्चुअली, बहुत यंग है। आई बिलीव ही इज स्टिल 23 years old, which is very young for the division. एंड उन्होंने उनका रिकॉर्ड अब तक अनडिफीटेड था टिल ही मेट हिज लास्ट ओपोनेंट डेरेक ब्रंसन, जिन्होंने उनको राउंड 3 में जाके हरा दिया था। एंड द थिंग वाज कि राउंड 3 तक शहबाजियन वाज वेरी टायर्ड एंड ही क्लियरली वाजंट capable of fighting because round 2 के एंड तक ही ऑलमोस्ट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। ग्राउंड पे चला गया था फाइट, ही वाज बीइंग हिट वेरी बैडली विद ग्राउंड एंड पाउंड एंड ही डिड नॉट हैव एन आंसर। तो आई डोंट नो कितना उनका नर्व्स उस पर मैटर किया कि फर्स्ट मेन इवेंट था, ही कुडंट हैंडल द प्रेशर, हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि जस्ट एनी लाइक कॉर्नर है, और भी बहुत सारे फाइटर्स हैं जो टायर्ड आउट हो जाते हैं इवेंचुअली, दे आर क्विक रिफ्लेक्स फाइटर्स, तो वो भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। आई थिंक अगर ये राउंड लेटर राउंड्स तक गया ये फाइट, तो जैक हरमैनसन इज क्लियरली द फेवरेट फॉर दिस। उनके पास सारा स्किल सेट है कि वो शहबाजियन को हराए। एटलीस्ट पेस वाइज तो हरमैनसन इज ऑलवेज एट फुल पेस, वन ऑफ द कार्डियो बेस्ड फाइटर्स बोल सकते हैं, एंड दैट्स नॉट समवेयर यू कैन बीट हिम। एंड अगर फाइट ग्राउंड पे भी इनिशियली गया तो जैक हरमैनसन का रिकॉर्ड ही है कि राउंड 1 में बहुत सारे फिनिशेस करे हैं उन्होंने अब तक, जो बहुत मैटर कर सकता है। शहबाजियन का भी ऐसे रिकॉर्ड है, राउंड 1 में उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे फाइट्स कंप्लीट किए हैं बाय TKOing his opponent or submitting his opponent, which is a record in itself. Props to him. I think उनका जो ब्रंसन वाला फाइट था उससे पहले एक ही फाइट था जो राउंड 1 के आगे गया था, जो भी वो जीते थे डैरेन स्टीवर्ट के साथ। ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो मेरे फेवरेट फाइटर को हरा दे, जैक हरमैनसन को। बट आई विल स्टिल पिक जैक हरमैनसन बिकॉज ये 3 राउंड्स में जब जाएगा, जैक हरमैनसन कैन बी वेरी ब्रूटल. He will put his pressure and I don't know if Shahbazyen will be able to handle it. Round 1 में अगर he finishes the fight, it will be great for him. If round 1 में Hermannson finishes the fight, I will not be surprised. I think ये round decision तक जाएगा ये fight. I think Hermannson should get this done, but I am not sure. But really ये fight you have to watch it. If you are a middleweight division fan, you will love to see कि ये prospects क्या करेंगे आगे जाके. आई थिंक ये कार्ड के लिए दैट्स ऑल. हम मिलेंगे नेक्स्ट कार्ड विच इज फॉर जार्जिनो रोजेनस्ट्रोक वर्सेस अगस्टो सकाई, जिसमें वी आल्सो हैव वॉल्ट हैरिस वर्सेस मार्सिन टुबुरा. तो हैवीवेट मेन एंड को मेन फाइट्स होंगे. विल डिस्कस दैट टू. आज तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स, हैव फन, बाय.